जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 7। यस्तविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जो पुरुष अपने अंतःकरण में निग्रही होता है, जिसकी आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है, परंतु फिर भी सामान्य संसारी मनुष्यों की तरह ऊपरी सब व्यवहार करता है, जो अपनी इंद्रियों को तो विहित विषयों का सेवन करने की स्वतंत्रता दे देता है, परंतु जिसके मन में विषयों में राग द्वेष नहीं होता और जो वे सब विहित कर्म करता चलता है जो उसके सामने उपस्थित होते हैं, वह कर्मेंद्रियों के सब कर्म करते रहने पर भी उनका नियमन करता है, पर उन कर्मों के द्वारा होने वाले विकारों से व्याप्त नहीं होता। समस्त विहित कर्म यानी जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, लेन देन रूप व्यापार, प्रजापालन और सेवा व खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते हुए उनके फल स्वरूप यह लौकिक और पारलौकिक समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग सिद्धि असिद्धि में सम होकर वह कर्म योगी कभी किसी कामना के वश में नहीं होता है और मोह का मल उसे नहीं लगता। जिस प्रकार पानी में तैरते रहने वाला कमल पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार वह भी निर्लिप्त रहकर सब प्रकार के लौकिक व्यवहार करता रहता है और देखने में सामान्य मनुष्यों की ही तरह जान पड़ता है, पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी सच्ची स्थिति की पूरी था ही नहीं लगती। जो पुरुष इस प्रकार के लक्षणों से युक्त दिखाई दे, उसी को सब प्रकार की आशाओं और इच्छाओं के पाश से मुक्त समझना चाहिए। हे अर्जुन, इसी प्रकार के जीवन मुक्त पुरुषों को सविशिष्यते सर्वश्रेष्ठ पुरुष की संज्ञा देनी चाहिए। But he excels, O Arjuna, who restraining the senses by the mind, unattached, directs his organs of action to the path of service. He knows the science of right action and technique of right living. The unbridled senses are like the poisonous snake, playing havoc among people. The curbed senses are like the inactive snake almost beaten to death. The sublimated senses cause harm to none, while elevating their owner to sublimity. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకము 7. యస్సేంద్రియాణి మనసా నియమ్య రభతే అర్జున కర్మేంద్రియే కర్మయోగ అసక్తస్స విశిష్యతే. మరియు ఓ అర్జున, ఏ పురుషుడైతే మానసికంగా ఇంద్రియములను వశపరుచుకుని అనాసక్తితో సమస్త ఇంద్రియముల ద్వారా కర్మయోగాచరణ చేయునో అతడే శ్రేష్ఠుడు. ఏ పురుషుడైతే తన అంతఃకరణలో నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటాడో, ఎవని ఆత్మ బ్రహ్మలీనమై ఉండి తిరిగి సామాన్య ప్రాపంచిక మానవుని వలె బాహ్యానికి అన్ని వ్యవహారముల నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడో, ఎవరు తన ఇంద్రియముల విహిత విషయములను
సేవించుటకు స్వాతంత్రం ఇస్తూ ఉన్నా కానీ ఎవరి మనసులో విషయం లేదు రాగద్వేషము ఉండవో, ఎవరైతే తన ముందున్న విహిత కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడో, కర్మేంద్రియములకు అన్ని పనులు చేస్తూ కూడా వాటిపై నియంత్రణ కలిగి ఉంటాడో, అతడు ఆ కర్మల ద్వారా ఏర్పడే వికారములచే కలత చెందడు. సమస్త విహిత కర్మలు అనగా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, అధ్యయనము, బోధనము, ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యవహారము, ప్రజాపాలన, సేవ, తినుట, త్రాగుట, నిద్రించుట, మేలుకొనుట, నడుచుట, తిరుగుట, కూర్చునుట, లేచుట మొదలైన సమస్త ఇంద్రియ కర్మలు శాస్త్రవిధి అనుసరించి ఆచరిస్తూ వాటి ఫలస్వరూపమైన ఇహలోక పరలోక సమస్త భోగములందు రాగద్వేషముల త్యాగము, సిద్ధి అసిద్ధులందు సమత్వమును కలిగిన వాడైన కర్మయోగి ఎన్నడూ కూడా ఏ కోరికకు వశుడు కాడు. ఇంకా మోహమాలిన్యము అతన్ని అంటుకోదు. నీటిలో తేలియాడే కమలము నీటిచే ఏ విధంగా తడవదో అదే విధంగా ఇతడు కూడా నిర్లిప్తుడై అన్ని విధములైన ప్రాపంచిక వ్యవహారములను ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. చూచుటకు మాత్రము సామాన్య మానవుని వలె తెలియబడుతూ ఉంటాడు. వాస్తవిక దృష్టితో చూసినట్టయితే తప్ప అతని నిజస్థితి యొక్క పరిమితి లోతు ఎంతో తెలియబడదు. ఏ పురుషుడైతే ఈ విధమైన లక్షణములతో కనిపిస్తాడో అతడు అన్ని రకముల ఆశలు, కోరికల నుండి ముక్తుడని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓ అర్జున, ఈ విధమైన జీవన్ముక్త పురుషునకు సవిశిష్యతే, శ్రేష్టమైన పురుషులు అనే పేరును ఉంచవలను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, जय प्रसरणम. जय गुरुदेव, जय पद्मशरण. अध्याय 3 श्लोक 7. पण हे अर्जुना, जो मनुष्य आपल्या मनाने इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवतो आणि सर्व इंद्रियांनी कर्मयोगाचं आचरण करून अलिप्त राहतो, तो सर्वोत्तम आहे. जो मनुष्य स्वतःमध्ये आत्मसंयमी आहे, ज्याचा आत्मा परमात्म्यात लीन आहे, तरीही तो सामान्य सांसारिक लोकांप्रमाणे वरवर वागतो, जो आपल्या इंद्रियांना विहित विषयामध्ये रमण्याचे स्वातंत्र्य देतो, परंतु त्याच्या मनात असलेल्या विषयाबद्दल कुठलीही आवड किंवा नापसंती नाही, आणि जो त्याच्यासमोर येणाऱ्या सर्व विहित कर्म करत राहतो, तो इंद्रियांच्या सर्व कृतींचे नियमन करतो, परंतु त्या कर्मामुळे होणाऱ्या विकारांनी प्रभावित होत नाही. सर्व विहित कर्मे म्हणजेच यज्ञ, ध्यान, तपस्या, अभ्यास, अध्यापन, व्यवसाय, व्यवहार, इतर लोकांची काळजी आणि सेवा, खाणे, पिणे, झोपणे, जागणे, चालणे, बसणे इत्यादी सर्व इंद्रिये शास्त्रानुसारच करून त्याद्वारे सर्व सांसारिक आणि आध्यात्मिक सुखामध्ये आसक्ती आणि द्वेषाचा त्याग करून यश आणि अपयशात समभाव राखून हा कर्मयोगी कधीही कुठल्याही इच्छेच्या प्रभावाखाली येत नाही आणि आसक्तीच्या घाणीने प्रभावित होत नाही. ज्याप्रमाणे पाण्यात तरंगणारे कमळ अप्रभावित राहते, त्याचप्रमाणे तो देखील अलिप्त राहतो आणि सर्व सांसारिक कार्यात गुंततो. तो सामान्य माणसासारखा दिसतो, तथापि वस्तुनिष्ठपणे बघितले तर त्याची खरी स्थिती पूर्णपणे अस्पष्ट होते. अशा गुणांचे प्रदर्शन करणारा मनुष्य सर्व आशा आणि इच्छांच्या बंधनातून मुक्त मानला पाहिजे. हे अर्जुना, अशा मुक्त पुरुषांना സവിഷ്യത്തെ അസേ म्हटले पाहिजे. ജയ ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 7. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യരതേ അർജുൻ കർമ്മേന്ദ്രിയേ കർമ്മയോഗമസ്കദ സ വിശിഷ്യതേ. അർജുന, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേർപിരിയുകയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും കർമ്മയോഗം പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും മികച്ചവൻ. സ്വയം നിയന്ത്രണമുള്ളവനും ആത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചവനും എന്നിട്ടും ഒരു സാധാരണ ലൗകിക വ്യക്തിയെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നവനും തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ആസ്വദിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നവനും എന്നാൽ മനസ്സിൽ ഈ വസ്തുക്കളോട് ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഇല്ലാത്തവനും തനിക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിധി അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർന്നും ചെയ്യുന്നവനുമായ മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പഠനം, പഠിപ്പിക്കൽ, വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ, ജനസംരക്ഷണം, സേവനം, ഭക്ഷണം, പാനീയം, ഉറക്കം, നടത്തം തുടങ്ങി എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും വേദങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതുവഴി എല്ലാ ലൗകികവും ആത്മീയവുമായ സുഖങ്ങളിലുമുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും ഉപേക്ഷിച്ച് വിജയപരാജയങ്ങളിൽ സമചിത്തത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർമ്മയോഗി ഒരിക്കലും ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെടില്ല. ആസക്തിയുടെ മാലിന്യത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു താമര നനയാതെ വെള്ളത്തിൽ തുടരുന്നതുപോലെ അത്തരമൊരു കർമ്മയോഗി നിസ്സംഗനായി എല്ലാ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നു. അവൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും കെണിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായതായി കണക്കാക്കാം. ഹേ അർജുന, അത്തരം മുക്തരായ പുരുഷന്മാരെ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അഥവാ സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വിളിക്കണം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जे मनुख मौन स इंद्रिय सबके अपना अधीन क अनासक्त भ कर्म योगक आचरण करैत अछि, वह श्रेष्ठ कहल जाइत अछि। जे मनुष्य अपन अंतःकरण में निग्रही होइत अछि, जेकर आत्मा ब्रह्म में लीन भ जाइत अछि, तैयो जे लोक साधारण जीव जकाँ व्यवहार करैत अछि, जे अपन इंद्रिय सबके विहित विषय के भोग लेल स्वतंत्रता दऽ दैत अछि, मुदा मौन में विषय सुखक राग द्वेष नहीं राखैत अछि, जे सोझा में पड़ल विहित कर्म के निरंतर करैत रहैत अछि, जे कर्मेंद्रिय सब द्वारा कयल गेल समस्त कर्म के बीचों में नियमन रहैत अछि, मुदा ओहि कर्मक विकार आ बंधन एहन मनुष्य के स्पर्शो नहीं करैत अछि। समस्त विहित कर्म जग, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, व्यापार, व्यवहार, प्रजापालन, सेवा आ भोजन पान, निद्रा जागरण, गमन आगमन, उठब बैसब आदि के इंद्रिय के समस्त आचार जे मनुख शास्त्र विहित विधि सँ करैत अछि, एहि कर्म सब के फल स्वरूप जे इहलौकिक आ पारलौकिक भोग में राग द्वेष त्याग सम रहैत अछि, सिद्धि आ असिद्धि दुनू स्थिति में ओ निष्पक्ष रहैत अछि आ कामना के अधीन होइते नहीं अछि। मोह के मल ओकरा छुबियो नहीं पाबैत अछि। जेना कमल दल जल में रहितों जल सँ भीजैत नहीं अछि, तहिना ओ कर्मयोगी लोक व्यवहार में लागलो रहि कऽ संपूर्ण लौकिक क्रिया करैत रहैत अछि, मुदा भीतरे भीतर निर्लिप्त रहैत अछि। बाहर से देखला पर ओ सामान्य मनुष्य जकाँ दिखाइत अछि, मुदा ओकर असल स्थिति के था नहीं लगाओल जा सकैत अछि। जाहि मनुख में ई लक्षण दिखाइत अछि, ओकरा सब आस इच्छा सँ मुक्त बुझबाक चाही। हे अर्जुन, एहन जीवन मुक्त मनुख सविशिष्यते माने सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहल जाय योग्य छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।